Hello my dear students, welcome back to our science class. Students, in our today's class of science, we all are going to see our chapter number 2. The name of this chapter is Diversity in Living World. Students, in this entire chapter, we all are going to see about our living world, how diversified this living world. We have so many plants, animals, and the best creation of God, we human beings, okay? So all things we are going to through this chapter. So come with me and let's see this chapter. In the starting of the chapter, my dear students, you can see a shlok from Sanskrit is written, okay, which shows you the importance of our mother nature. Let's see. Chaya manasya kurvanti nishthanti swa matve falanyampi paratharya vriksha satpurusha eva. Okay, Subhashya. Now, what is the meaning of this shlok? Let's see. Trees stand in the sun and give shade to others. Their fruits are also for others. Likewise, good people bear all hardship and bring welfare to others. They give to others whatever they have earned. Okay, students, इस संस्कृत के श्लोक का मतलब ये है, tree is standing in harsh sunlight. Okay, no matter what season come and go. Okay, they always stand at their fixed position. Okay, and they give shade to other living beings. Okay, ये trees का मतलब क्या होता है? We can find fruits, flowers, everything from our tree. ठीक है, बिल्कुल ट्री की तरह ही जो गुड पीपल होते हैं वो क्या करते हैं, चाहे उनके लाइफ में कितना भी हार्ड सिचुएशन आ जाए, मतलब उनको प्रॉब्लम्स कितनी भी फेस करनी पड़े, वो कभी भी क्या करते हैं, कभी भी वो गिव अप नहीं करते, दे नेवर गिव अप, दे ऑलवेज ट्राई टू डू गुड फॉर अदर पीपल. ओके, दैट्स व्हाई थ्रू दिस श्लोक human beings, good human beings are compared with trees. Okay, wise saying, subhashit, इसका मतलब है wise saying. Okay, now let's start the main chapter. See, bright and pleasant morning follows yesterday refreshing sun. Dr. Raghu and Maniram Chacha, uncle, have been invited to the school by the science teacher, Madam Sulekha, to facilitate an enthralling nature walk. Dr. Raghu is a scientist from the nearby research laboratory, and Maniram Chacha, an elderly person from a nearby community, is master in mimicking bird calls. He is also skilled at identifying a wide variety of plants and animals. ठीक है, yesterday कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी, और बारिश होने के बाद आज का जो दिन है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट सनलाइट के साथ है, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है. ठीक है, तो डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा, ठीक है, have been invited to the school by the science teacher मैडम सुलेखा. ठीक है, हमारे एरिया में जो स्कूल है वहाँ की जो साइंस टीचर है जिनका नाम सुलेखा मैम है, उन्होंने मनीराम चाचा को और डॉक्टर रघु को इन्वाइट किया है. ठीक है, और क्यों इन्हीं दोनों लोग को इनवाइट किया गया है कि जो डॉक्टर रघु हैं वो हमारे एरिया के पास का जो रिसर्च लैबोरेटरी है ये वहां पे साइंटिस्ट है. एंड अबाउट मनीराम चाचा, ही वाज एक्सपर्ट इन मिमिकिंग द बर्ड्स. ओके, वो किसी भी बर्ड की मिमिक्री बहुत अच्छे से कर सकते हैं. साथ ही साथ उन्हें इतना ज्यादा नॉलेज है कि आप उन्हें कोई भी बर्ड, नॉट बर्ड ओनली, आप उनको कोई भी एनिमल या किसी भी प्लांट की स्पीशीज दिखा दीजिए, वो सिर्फ देख के बता देंगे व्हाट इज द नेम ऑफ दिस स्पीशीज. ओके, नाउ to prepare the students for the walk, Dr. Raghu explains that the purpose is to experience the beauty and diversity of plants and animals in nature. ठीक है, तो देखो डॉक्टर रघु ने सारे स्टूडेंट्स को बताया स्कूल में आने के बाद कि आज का जो पर्पस है, हम जो आए हैं वो इसलिए आए हैं ताकि हम हमारे नेचर में जो ये प्लांट्स और एनिमल्स हैं, ठीक है, हम उनकी ब्यूटी, हम उनकी डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ें. ठीक है, इसके अलावा जो स्टूडेंट्स थे वो बहुत ही ज्यादा क्यूरियस थे उनसे बात करने के लिए, उनसे नई नई चीजें सीखने के लिए. ठीक है, मैडम सुलेखा ने स्टूडेंट्स को अपना नोटबुक, पेन और वाटर बॉटल लाने के लिए कहा. आफ्टर देन, सी, as the group walks through the park, they begin to explore the plants and animals around them. ठीक है, तो अपने नोटबुक, पेन एंड वाटर बॉटल्स को लाने के बाद जो स्टूडेंट्स थे वो क्या करते हैं, मनीराम चाचा और डॉक्टर रघु के साथ चलना शुरू करते हैं और अपने आसपास के सारे एनवायरनमेंट को देखते रहते हैं. ठीक है, डॉक्टर रघु ने स्टूडेंट्स को एनकरेज किया कि आप अपने आसपास जो भी स्मेल आपको आती है, ठीक है, आपको उसको
नोट डाउन करना है, ठीक है, मतलब आपको ये याद करना है कि वो किस टाइप के स्मेल थे, ठीक है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है, मतलब ऑब्जर्व करना है जितने भी लिविंग क्रिएचर्स आपके पास आसपास है विदाउट डिस्टर्बिंग देम, मीन्स यू हैव टू ऑब्जर्व ऑल दिस लिविंग क्रिएचर्स विदाउट डिस्टर्बिंग देम। ओके, नाउ मनीराम चाचा ने देखो आगे क्या कहा। मनीराम चाचा advised the students not only to examine the various plants and animals but also to conscientiously listen to the sounds they hear in nature। मनीराम चाचा ने सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स को एग्जामिन करने के लिए नहीं कहा, बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि आप उनके साउंड्स को भी सुनिए। जैसे हम बात करते हैं, ह्यूमंस बात करते हैं, ठीक है, उनकी अपनी लैंग्वेज होती है, तो वैसे उनको ये जो बर्ड्स हैं, ठीक है, जो एनिमल्स है, वो जो साउंड क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, आपको उनको भी बहुत अच्छे से सुनना है। इसके अलावा अगर आप देखोगे, अलोंग द वे दे ऑब्जर्व अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स फ्रॉम ग्रासेस एंड बुशेस टू टॉल ट्रीज। तो ये बच्चे जब जा रहे थे तो अपने पाथ में इन लोगों ने बहुत सारे प्लांट्स को, ग्रासेस को, अलग अलग वैरायटी ऑफ प्लांट स्पीशीज को इन्होंने ऑब्जर्व किया। साथ ही साथ स्टूडेंट्स इन्होंने ना बहुत सारे बर्ड्स को भी ऑब्जर्व किया। ये जो बर्ड्स थी, ठीक है, ये बर्ड्स ट्री की ब्रांचेस पे बैठी हुई थी। बटरफ्लाइज क्या कर रहे थे, कभी इस फ्लावर से कभी उस फ्लावर पे जा रहे थे। साथ ही साथ एक ट्री से दूसरे ट्री पे मंकीज भी कूद रहे थे। इसके अलावा ये जो स्टूडेंट्स थे, ठीक है, इन्होंने क्या किया, ये सारी चीजों को अपने नोटबुक में लिखा, ठीक है, और नोटबुक पे लिखने के बाद अब क्या किया, डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के साथ उन सारी चीजों को लेके इन्होंने डिस्कशन करना शुरू किया। तो जब ये सारी चीजें वो कर रहे थे, उसी टाइम उनको ना एक बहुत ही यूनिक बर्ड की चिरपिंग की आवाज आती है। तो डॉक्टर रघु ने उन्हें बताया कि हर एक बर्ड का अपना खुद का एक कॉल होता है। कॉल मीन्स व्हाट, हर एक बर्ड का अपना खुद का एक लैंग्वेज होता है। यस, animals and birds also speak in their language, okay, although we can't understand them, but it's their own language, ठीक है। इसके अलावा देखो, डॉक्टर रघु ने फिर मनीराम चाचा से बोला कि आप क्यों नहीं कुछ बर्ड्स की मिमिक्री करके हमें दिखाते हैं। तो डॉक्टर रघु की बातें सुन के मनीराम चाचा बहुत खुश हो जाते हैं, ठीक है। फिर वो कहते हैं कि ठीक है, मैं बिल्कुल रेडी हूँ करने के लिए, ठीक है। तो चलो, तो उसके बाद जो मनीराम चाचा थे वो बर्ड्स की मिमिक्री करना शुरू करते हैं, ठीक है। ये जब हो जाता है, उसके बाद डॉक्टर रघु पूछते हैं, ओके, डॉक्टर रघु किससे पूछते हैं, बच्चों से पूछते हैं कि क्या तुम सब लोगों ने अपने आसपास के प्लांट्स और एनिमल्स को अच्छे से देखा है, अच्छे से उन्हें ऑब्जर्व किया है, अच्छे से उनको एग्जामिन किया है। तो स्टूडेंट्स ने जो नोट डाउन किया था ना सारे ऑब्जर्वेशंस को, ठीक है, वो एक एक करके बताना शुरू करते हैं, और इस तरीके से इन लोगों के बीच में ये पूरा सेशन कंटिन्यूअस चलता रहता है, ठीक है। इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा का पूरा वॉक था, ठीक है, इस पूरे वॉक के थ्रू स्टूडेंट्स ने सिर्फ और सिर्फ नेचर की डाइवर्सिटी के बारे में नहीं देखा, उन्होंने ये भी देखा कि वी ऑल्सो हैव टू शो आवर रिस्पेक्ट, we also have to show our appreciating nature towards our environment, because if there is no environment there is no life, okay। उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा इस वॉक के थ्रू, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स देखिए, ये क्यों आपको बताया गया है, ये जो पूरा का पूरा भी सिनेरियो था, ये क्यों बताया गया, ताकि आपको समझ में आए कि हमारा जो ये पूरा एनवायरनमेंट है वो बहुत सारे अलग अलग प्लांट और एनिमल से भरा पड़ा है अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है। यही सारी चीजें जब कंटिन्यूअसली एक दूसरे का कोऑपरेट करती हैं तो हमारा ये पूरा नेचुरल वर्ल्ड चलता चला जा रहा है, ठीक है। तो देखो, दिस डाइवर्सिटी कैन बी सीन इन मेनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट इनहैबिट वेरियस इकोसिस्टम्स, ओके। ये जितनी भी डाइवर्सिटी है, क्या ये सब एक ही जगह पे पाई जाती हैं? बिल्कुल नहीं, ये सब अलग अलग जगह पे पाई जाती है, जिनको आप इकोसिस्टम कहते हो, ठीक है। ये सब क्या करते हैं, हमारे पूरे के पूरे एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन करने में बहुत हेल्प करते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारा एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा हेल्दी रहता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में यूनिक चीज़ें पता चलेंगी। नाउ वी आर गोइंग टू सी द डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल्स अराउंड अस। स्टूडेंट्स, बिफोर फर्दर प्रोसीडिंग, आप लोगों को ये जो एक्टिविटी है, ठीक है, एक्टिविटी 2.1 लेट अस एक्सप्लोर एंड रिकॉर्ड, ये आपको करना है, ठीक है। चलो, तो आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं कुछ प्लांट्स के। तो आप देखोगे ग्रास, ये देखो ग्रास है, ये तुलसी, एंड दिस इज हिबिस्कस। कंबाइनली ये सब क्या है, कंबाइनली ये सारे के सारे के प्लांट्स में आते हैं, ठीक है। लेकिन ग्रास का एक स्ट्रक्चर देखोगे बिल्कुल अलग है, तुलसी, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है, और हिबिस्कस फ्लावर बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है, ठीक है, क्योंकि यही तो है डाइवर्सिटी इन प्लांट्स, ठीक है, यही तो है हमारा पूरा का पूरा डाइवर्सिटी इन प्लांट वर्ल्ड, ठीक है। ओके, अगर आप देखेंगे
तो ये देखिए ऑब्जर्वेशंस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड अस, ये जो पूरा टेबल है ना, इट शोज आवर ओन ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन डिफरेंट प्लांट्स विच इज प्रेजेंट इन आवर नियर बाय सराउंडिंग। तो अगर आप देखोगे सबसे पहले कॉमन ग्रास, ओके, ये जो अभी आप नाम देखोगे ना, ये सब लोकल नेम्स है जो हमारी कंट्री इंडिया में लोकली जाने जाते हैं, ठीक है। तो देखो कॉमन ग्रास, ठीक है, तो कॉमन ग्रास के स्टेम कैसे होते हैं, ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, पतले होते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर माय डियर फ्रेंड्स। नाउ लीव्स, शेप, अरेंजमेंट, ओके, जो ये कॉमन ग्रास है इसमें जो लीव्स होती हैं ये कैसी होती हैं, देखो अ सिंगल लीफ ग्रोज ऑल्टरनेटिवली फ्रॉम डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द स्टेम। अगर आप देखेंगे ये देखो लीव्स कहीं नीचे से निकल रहा है, कहीं मिडल से है, तो कहीं अपर पोर्शन से, देखो हर जगह से यहाँ से निकलते रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्या ग्रासेस में फ्लावर्स होते हैं? बिल्कुल नहीं। एनी ऑब्जर्वेशन एंड फीचर, क्या ऑब्जर्वेशन क्या फीचर होगा? ग्रीन लीव्स होती हैं इसकी, ये पूरा का पूरा ग्रीन होता है। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट तुलसी, ठीक है। तो तुलसी की स्टेम क्या होती है इन कंपैरिजन ऑफ ग्रासेस? दे हैव हार्ड एंड थिन, ओके। इसके लीव्स कैसी होती हैं? अगर आप देखोगे इनमें ना पेयर ऑफ लीव्स होती हैं और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे के रहती हैं, ठीक है। इनमें फ्लावर्स भी होते हैं, यस वी हैव फ्लावर इन आवर तुलसी प्लांट। और जो ये फ्लावर आता है ये किस कलर में आता है? ये पिंकिश पर्पल कलर में आता है, ठीक है, पिंकिश पर्पल कलर। देन हिबिस्कस, यू कैन सी हिबिस्कस, जिसको गुड़हल बोला जाता है, ओके। सो हिबिस्कस के स्टेम्स कैसे होते हैं? हार्ड, ओके। और फ्लावर यू कैन सी इन दिस पिक्चर, रेड कलर्ड फ्लावर, ठीक है, ओके। और ये आप देख सकते हो इसमें, देखो, ठीक है, ये क्या है? येलो कलर्ड में है ये सारे के सारे, ठीक है। चलो इसके अलावा नीम, नीम का देखो क्या स्टेम होता है? हार्ड एंड थिक। नीम इज अ ट्री, ओके। नीम क्या है? ये प्लांट में स्ट्रॉन्गेस्ट कैटेगरी में आते हैं, इसीलिए ट्री कहलाते हैं। तो इनका स्टेम कैसा होता है? हार्ड एंड थिक, ठीक है। इसके अलावा एनी ऑब्जर्वेशन एंड फीचर, लीव्स विथ स्मूथ सरफेस। तो जो नीम की लीव्स होती है दे हैव अ रियली वेरी स्मूथ सरफेस एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन ग्रीन कलर, ओके। देन ओके, एनी अदर, ये तो सारी वो कॉमन प्लांट्स हैं जो हमारे आसपास पाए जाते हैं। नाउ व्हाट अबाउट एनी अदर प्लांट? अगर कोई है तो आप बताएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। अच्छा, अब देखोगे आप, ये सारा आपने कंपैरिजन देख लिया, यू हैव सीन all these comparisons. Now on the basis of this comparison we are going to see the similarities and differences among the plant world. So first of all we are going to talk about height and stem, okay, we are going to talk about height and stem. आपके कुछ प्लांट्स ना बहुत बड़े होते हैं और जो प्लांट्स बहुत बड़े होते हैं उनके स्टेम्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं, जैसे कि ट्रीज। वहीं पे कुछ ऐसे होते हैं जिनकी हाइट छोटी होती है, शॉर्ट होती है। तो जिनकी हाइट शॉर्ट होती है, जैसे कि आपके हर्ब्स हैं, उनके stems in comparison of your trees they are really soft, okay. Now leaves, this is the second criteria of making comparison between the among the plants. Leaves, तो लीव्स आप देखोगे, लीव्स बहुत सारे अलग अलग शेप्स में आते हैं, साइजेस में आते हैं, उनका अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है, ठीक है। देन कम्स द टर्न ऑफ फ्लावर्स। तो फ्लावर्स में अगर आप देखेंगे स्टूडेंट्स, तो फ्लावर्स बहुत सारे शेप, साइज, कलर में आता है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स, आप ये तो थे सारे आपके प्लांट। You can also create a list of so many animals which you can usually see around your, okay, around your own environment, okay. तो अब आपको क्या करना है? Record where they live, what they eat and how they move. आपको ये रिकॉर्ड करना है। तो ये देखो observations of different animals around us, okay. So this is the observation, okay, this is the observation जो आप बना रहे हो उन एनिमल्स के ऊपर जो आपके आसपास मिलते हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा कॉमन एनिमल है जो हर जगह पाए जाते हैं वो है आपका क्रो। बट क्रो इज अ बर्ड, बर्ड ऑल्सो कम्स इन द कैटेगरी ऑफ एनिमल्स, ओके। तो देखिए ट्री, ये कहाँ पे रहते हैं? ट्री पे रहते हैं। क्या खाते हैं? इंसेक्ट्स खाते हैं। एक्चुअली क्रोज आर कंसिडर्ड इन द कैटेगरी ऑफ ओमनिवोरस, ठीक है। ये ओमनिवोरस होते हैं, ये प्लांट्स और दूसरे एनिमल्स के फ्लैश दोनों को ये खाते हैं, ठीक है। अगर आप देखेंगे तो देखिए ये कैसे मूव करते हैं। क्रोज कैन वॉक एंड क्रोज कैन फ्लाई ऑल्सो, ओके। एनी अदर ऑब्जर्वेशन एंड फीचर्स अबाउट क्रो? तो इनके पास क्या होता है? कैरिंग अ ट्विग इन इट्स बिग, ओके। देन आंट, तो आंट कहाँ रहते हैं? ठीक है, आंट हिल में रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये क्या खाते हैं? ये लीव्स, सीड्स और छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाते हैं। इसके अलावा आंट की एक बहुत ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि क्या इनके पास क्या है? इनके पास 6 लेग्स हैं, ठीक है। फिर देखिए काऊ, तो काऊ क्या खाते हैं? वैसे काऊ रहते कहाँ पे हैं? ठीक है, काऊ शेड में, ठीक है। क्या खाते हैं? ये आपके सिर्फ और सिर्फ ग्रासेस या फिर ग्रीन लीव्स को खाते हैं, ठीक है। चलो अब आपने यहाँ पे क्रो,
आंट और काउ, ये आपने 3 कैटेगरी ऑफ एनिमल्स को कंपेयर किया है। तो इन पे बेस्ड कंपैरिजन को आप कैसे डिस्क्राइब कर सकते हो? तो सबसे पहले आप हैबिटाट लोगे, ठीक है, क्योंकि हैबिटाट आपने अभी जस्ट देखा है कि एक ट्री पे रह रहे हैं, तो एक आपके सॉइल में रहते हैं और एक आपके काउ शेड में रहते हैं, ठीक है। तो हैबिटाट क्या है? कुछ एनिमल्स आपके लैंड पे रहते हैं, द बेस्ट एग्जांपल इज डॉग, एंड कुछ आपके ट्रीज में रहते हैं जो स्क्विरल्स हैं, ठीक है। वहीं पे कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं हु कैन लिव ऑन बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर, एंड द कॉमन एग्जांपल इज फ्रॉग्स, ठीक है। तो फ्रॉग्स क्या करते हैं? जब वो टोड रहते हैं, ठीक है, अपने अर्ली स्टेजेस में वो पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन जब वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाते हैं तो यूज टू लिव इन नियर बाय वाटर एरिया। ओके, नाउ डाइट एंड मूवमेंट, तो उनका खाना कैसा है इन सारे अलग अलग एनिमल्स का, और इनका मूवमेंट कैसा होता है? तो अगर आप देखोगे एनिमल्स अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं और उनका मूविंग वे भी अलग होता है। जैसे कि स्नेक्स का अगर आप देखेंगे, स्नेक्स कांट वॉक, दे कैन क्रॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। वहीं पे जो डॉग होते हैं, दे हैव 4 legs, ओके, दे कैन रन, दे कैन वॉक, ओके। तो आपने देखा ये इनके मूवमेंट्स अलग अलग होते हैं, बिल्कुल, ठीक है। तो चलिए, अब आपने यहाँ पे यू हैव सीन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट्स एंड एज वेल एज द एनिमल्स। तो अब आप प्लांट और एनिमल के बीच में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं, आप बता सकते हो उनके बीच पे मतलब किस चीज के बेसिस पे आप इनमें डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, ये सारी चीजें आप बता सकते हैं, ठीक है ना। एक्टिविटी 2.2 लेट्स अप्रिशिएट, तो ये आप लोग करेंगे, ठीक है ना। आगे देखिए, द नंबर ऑफ डिफरेंट plants and animals drawn on the blackboard would depend on how many students participate and what they choose to draw. Okay, आपने जो ये अभी कंपैरिजन देखा है, ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट्स ने, ये भी आपने पढ़ा है ना जहाँ पे मनीराम चाचा और डॉक्टर रघु थे, ठीक है, ये उन्हीं पर बेस्ड ये पूरा का पूरा क्या था? ऑब्जर्वेशन था, ठीक है। तो आपने ये देखा है कि यहाँ पे स्टूडेंट्स ने कैसे कैसे ऑब्जर्वेशंस किए हैं और लास्ट में कंक्लूजन क्या निकल के आया है? यस, प्लांट एंड एनिमल्स आर रियली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ओके। अब आप ये देखिए, द वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स इन अ रीजन इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी? ओके, द वेराइटी ऑफ लिविंग थिंग्स लिविंग इन एन एरिया, इट इज कॉल्ड एज बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। सारे प्लांट और एनिमल का इकोसिस्टम में अपना खुद का रोल होता है, ठीक है। दे ऑलवेज शो दैट देन इन व्हाट वे दे आर गोइंग टू रिलाई अपॉन ईच अदर, ओके। एग्जाम्पल यू कैन टेक, ट्रीज क्या करते हैं? ये एनिमल्स के लिए और बर्ड्स के लिए शेल्टर का काम करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ ये क्या करते हैं? एनिमल्स जो सीड्स होते हैं, जब वो कुछ एनिमल्स जब फ्रूट्स को खाते हैं तो वो सीड्स को यहाँ वहाँ मूव कर देते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है? इससे न्यू प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से जहाँ पे ट्रीज एनिमल के ऊपर डिपेंडेंट है, एनिमल्स पे ट्रीज पे डिपेंडेंट है, ओके। नाउ इम्पोर्टेंस ऑफ डाइवर्सिटी, हाउ important is diversity for us? Let's see, ecological balance, this is the first thing why we considered biodiversity as a very important feature. तो ecological balance का क्या मतलब है? देखिए, diversity in plants and animals is vital for maintaining the balance of ecosystem, ठीक है। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डाइवर्सिटी, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम के बैलेंस को मेंटेन करने में, ठीक है। अब एग्जांपल देख सकते हो, प्लांट्स हमें क्या करते हैं? प्लांट्स ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और फूड प्रोवाइड करते हैं। वहीं पे जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स के पॉलिनेशन में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं, ठीक है। उनके सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह मूव कराते हैं, साथ ही साथ पेस्ट को भी कंट्रोल करते हैं, ठीक है। चलो, द सेकेंड पॉइंट, biodiversity and health, okay. Yes, our biodiversity and health are interrelated, but in what way? Let's see. A diverse environment ensures the survival of species by offering a variety of food sources and habitat. हमारा एनवायरमेंट बहुत बड़ा है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड है, ठीक है। आप देखोगे कहीं पे आपको माउंटेन्स दिखेंगे तो कहीं पे आपको डेजर्ट दिखेगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इसकी वजह से फूड के सोर्सेस भी अलग अलग हैं, ठीक है, और एनिमल्स के हैबिटाट्स भी अलग अलग हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमारे एनवायरमेंट के रेगुलेशन में, ठीक है, वाटर साइकिल को मेंटेन करने में और सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। देन कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यू, इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारा देखो, ये जो बायोडाइवर्सिटी एंड बैलेंस है, दिस 2 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम द साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट कल्चरल एंड एस्थेटिक वैल्यू। ये क्या है? देखिए, द डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स एनरिचेस ह्यूमन लाइफ, providing beauty, inspiration and sources for food, medicine and shelter. तो जो
ये जो प्लांट्स और एनिमल्स की इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी, ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ ये उनको एनरिच नहीं करते हैं, ये हमारे पूरे एनवायरनमेंट को ब्यूटी प्रोवाइड करते हैं, इंस्पिरेशन देते हैं। साथ ही साथ हमारे पास बहुत सारे फूड के रिसोर्सेज भी अवेलेबल होते हैं, ये हमें मेडिसिन देते हैं, हमें शेल्टर देते हैं। ठीक है, आप देखो कि प्लांट्स और एनिमल्स को ना आप बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे ग्रुपिंग कर सकते हो इनका। ठीक है, और इनकी वजह से आप क्या कर सकते हो, इनको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो हम कहते हैं ना कि ये प्लांट है, ये एनिमल है, ये कार्निवोरस है, ये हर्बिवोरस है, कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें बताई गई हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो भी आपने पढ़ी हैं, आपने देखा है कुछ ट्रीज बहुत लॉन्ग है, ठीक है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, वहीं पे कुछ ट्रीज बहुत ज़्यादा छोटी हैं, उनके स्टेम्स बहुत पतले हैं। तो ये सारे फीचर्स क्या करते हैं, सारे फीचर्स इनके डिविजन में हेल्प करते हैं। ठीक है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो। ठीक है ना, ग्रुपिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब प्लांट्स और एनिमल्स को आप ग्रुप कैसे करोगे? ठीक है, देखो, हाउ वुड यू arrange your books and notebooks in groups? Would arranging them in groups help you better organize your school bag? Okay, आप अपने स्कूल बैग को ऑर्गेनाइज करते हो, ठीक है, तो आप कैसे करते हो ऑर्गेनाइज, ताकि आपको बहुत इजी हो, अगर कोई आपको बुक पर्टिकुलर कोई बुक या कॉपी निकालनी हो, तो जैसे आप अरेंजमेंट करोगे सेम वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स की भी ग्रुपिंग की गई है, ताकि उनको आइडेंटिफाई करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखो, यहाँ पे अगर हमारे वर्ल्ड की आप बात करोगे तो हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। ठीक है, जिनके बारे में अभी आपने 2.1 सेक्शन में पढ़ा है, देखा है ना आपने, क्रो के बारे में देखा, काऊ के बारे में देखा, देन वी टॉक अबाउट तुलसी ट्री एक्सेट्रा, सॉरी तुलसी प्लांट एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। ठीक है, तो आइए देखिए, वी कैन ग्रुप दैम बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस अमॉन्ग दैम। कैसे 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 इनकी ग्रुपिंग करोगे, इनके बीच में क्या सिमिलैरिटीज है और इनके बीच में क्या डिफरेंसेस है, यही ग्रुपिंग का इनका बेस होता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा हाइट, ठीक है, कि कौन से प्लांट्स की अगर बात की जाए तो प्लांट्स की हाइट कितनी है, ठीक है, साथ ही साथ किस प्लांट में फ्लावर है या किस में नहीं है, ठीक है, ये बेसिस होता है प्लांट्स की ग्रुपिंग में। नाउ ऑन द बेसिस, नाउ व्हाट आर द बेसिस फॉर ग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स? फर्स्ट एंड मेजर थिंग इज डाइट, वो खाते क्या है। ठीक है, now how to group plants, now we are going to see how we are going to group our plants. ठीक है, so students, आप लोगों ने देखा है in your previous classes about your herbs, shrubs और trees. okay, तो ये जो herbs, shrubs और trees होते हैं, इनकी जो क्लासिफिकेशन वो कैसे किया जाता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, कुछ प्लांट्स बहुत बड़े हैं, कुछ प्लांट्स छोटे हैं, तो कुछ मीडियम साइज के हैं, तो यही बेसिस बनता है प्लांट्स के ग्रुपिंग का। ठीक है, सो टेबल देखो यहाँ पे, ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन हाइट एंड नेचर ऑफ स्टेम। ठीक है, तो जो प्लांट्स हैं उनका हाइट और स्टेम, इनके बेसिस पर आप कैसे ग्रुप करोगे? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मैंगो। सो मैंगो की हाइट, जो मैंगो ट्री है, एक्चुअली इट्स अ ट्री। ठीक है, इनकी हाइट क्या होती है, बहुत टॉल होते हैं। ठीक है, इनके स्टेम का कलर क्या होता है, ये ब्राउन कलर के होते हैं, और इनके स्टेम बहुत ज्यादा हार्ड और थिक होते हैं। एंड व्हाट अबाउट द ब्रांचेस? सो ब्रांचेस का अगर आप देखोगे, ब्रांचेस हायर अप ऑन द स्टेम। ठीक है, ओके, और ये किस कैटेगरी में आते हैं? एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, ये ट्री की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट वन इज रोज। तो रोज, इनकी जो हाइट होती है इस प्लांट की ना, ये बहुत ज्यादा होते हैं ना, बहुत ज्यादा कम होते हैं। ठीक है, दे आर मीडियम इन हाइट, स्टेम कलर ब्राउन होता है, और ये हार्ड होते हैं और थिन भी होते हैं। ठीक है, उनके जो ब्रांचेस होते हैं वो बेसिकली आपके ग्राउंड के पास होते हैं। ठीक है, तो ये श्रब की कैटेगरी में आते हैं। एंड द टोमेटो, टोमेटो की हाइट है क्या है, इन प्लांट की हाइट क्या होती है, बहुत ज्यादा शॉर्ट होते हैं। इनकी जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है। ठीक है, स्टेम का नेचर टेंडर और ये काफी थिन होते हैं। इसके अलावा जस्ट लाइक श्रब्स, इनके भी जो ब्रांचेस होते हैं वो ग्राउंड के क्लोज पाए जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम इनको हर्ब्स की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा पैराग्राफ है वो आपसे क्या कह रहा है, आप सभी लोगों ने अपने प्रीवियस क्लासेस में हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बारे में देखा है ना, हाउ हाउ वी आर गोइंग टू ग्रुप दिस प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। ठीक है, तो ये डेटा आपने देख ही लिया है, यही बेसिस फॉर्म करता है इनके कैटेगराइजेशन का। ठीक है, तो देखो, जो बहुत ज्यादा टॉल ट्रीज होते हैं, जिनके स्टेम बहुत ज्यादा उड़े होते हैं, आप उनको क्या कहते हो, ट्रीज कहते हो। द बेस्ट एग्जांपल इज मैंगो ट्री। ओके, वहीं पे कुछ प्लांट्स जो कि आपके ट्रीज की तरह ये लंबे नहीं होते हैं, ठीक है, बट दे हैव ब्राउन उडी स्टेम, ओके, एंड देयर ब्रांचेस आर आल्सो वेरी क्लोज टू द ग्राउंड। ओके, सो दिस टाइप ऑफ
plants are called as your shrub, and the best example of shrub is your rose plant. Then comes the turn of herbs. तो herbs क्या होते हैं, ठीक है, herbs क्या है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ये ग्रीन कलर के इनके स्टेम्स होते हैं और ये काफी सॉफ्ट भी होते हैं, ठीक है, तो इनको आप herb कहते हो। इसके अलावा आप लोगों ने क्लाइंबर और क्रिपर्स के बारे में भी पढ़ा है, ठीक है। कुछ प्लांट्स को सपोर्ट की जरूरत होती है, विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट दे कैन स्टैंड, तो आप इनको क्या कहते हो, क्लाइंबर्स कहते हो। वहीं पे कुछ प्लांट्स होते हैं वो जमीन पे ही सिर्फ रहते हैं, ठीक है, आप उनको कोई भी सपोर्ट दे दीजिए, दे आर नेवर गोइंग टू स्टैंड ऑन देयर ओन, ओके। तो ऐसे प्लांट्स को हम लोग क्रिपर्स कहते हैं, एंड द एग्जांपल ऑफ क्रिपर इज वाटरमेलन, मस्कमेलन, गॉड्स एक्सेट्रा, ठीक है। आइए, इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे प्लांट्स के कैटेगराइजेशन का जो नेक्स्ट स्टेप है वो होते हैं लीव्स, okay, so you can see leaves are also present in different shape, different size, okay, तो इनका एक बेसिस होता है जिसपे आप प्लांट्स को कैटेगराइज करते हो, ओके। सो किसी भी लीफ में, लेट मी शो यू, ये देखो ये पिक्चर है, ये देखिए ये जो लीव्स आप देख रहे हो ना, वेन्स जो आ रही है बीच में, तो देखो ये थिन लाइंस होती हैं, द थिन लाइंस ऑन अ लीफ, ये जो पतली सी एकदम थिन लाइन है इसी को हम वेन्स कहते हैं, ओके। और ये एक पैटर्न को फॉर्म करते हैं, और जब वेन्स फॉर्म द पैटर्न, that pattern is called as variation. And in leaves, or you can say in plants, we have two main types of variations. First one is your reticulate variation. तो reticulate variation आपका क्या है, देखिए रेटिकुलेट वेनेशन, ये आप पिक्चर में देख सकते हो, ये नेट लाइक ये पैटर्न होता है, ठीक है, ये सारे के सारे ये सेंट्रल वेन से आपके कनेक्टेड होते हैं, और बेसिकली आपके हिबिस्कस प्लांट जो है ना, ये उसके लीफ को, हिबिस्कस के लीव्स को आप देखोगे ना, तो ये ऐसे ही आपको दिखेंगे, तो ये आपके रेटिकुलेट वेनेशन है। नाउ नेक्स्ट वन इज पैरेलल वेनेशन। तो पैरेलल वेनेशन आपका क्या है, देखिए पैरेलल वेनेशन, तो नाम से ही पता चल रहा है, यहाँ पे जो ये वेन्स है ये एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलली रन करते हैं, और बेसिकली आपके बनाना और ग्रासेस में पाए जाते हैं, ठीक है। चलो, तो ये लीफ का बेसिस हो गया, इनके बेसिस पे आप किसी भी प्लांट को कह सकते हो ये प्लांट जो है ये इस रेटिकुलेट वेनेशन की कैटेगरी में, या फिर ये प्लांट आपके पैरेलल वेनेशन की कैटेगरी में है, ठीक है। नाउ रूट्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रूट्स। वी ऑल्सो नो दैट माय डियर स्टूडेंट्स, एवरी प्लांट हैव roots, okay, but root is divided into two main parts. The name of first part is टैप रूट। तो टैप रूट क्या होते हैं, ये स्टेम्स में आपके सिंगल रूट्स आते हैं, ठीक है, सिंगल मेन रूट आता है, उसी मेन रूट से आपके कई सारे और फर्दर रूट्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल मस्टर्ड प्लांट है, ठीक है। द सेकंड वन इज फाइब्रस रूट। अब ये फाइब्रस रूट क्या है, देखिए फाइब्रस रूट, ये आपके बहुत सारे बंच ऑफ छोटे छोटे टाइनी रूट्स क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं स्टेम से, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल ग्रासेस है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक और लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि ग्रासेस और लीव्स, इनके बीच में बहुत क्लोज रिलेशन है। कैसे क्लोज रिलेशन है, लेट्स सी। प्लांट्स विथ रेटिकुलेट वेनेशन हैव टैप रूट्स। जो भी प्लांट रेटिकुलेट वेनेशन के कैटेगरी में आता है वो हमेशा टैप रूट ही बियर करेंगे, ठीक है, यानी कि जो रेटिकुलेट वेनेशन वाले प्लांट्स हैं वो हमेशा टैप रूट को बियर करेंगे, वहीं पे जो पैरेलल वेनेशन वाले हैं वो हमेशा फाइब्रस रूट को लेंगे। द बेस्ट एग्जांपल है सदाबहार प्लांट, ठीक है। सदाबहार जो प्लांट होता है ये रेटिकुलेट वेनेशन कैरी करता है लीफ में, ठीक है, और अगर ये रेटिकुलेट वेनेशन कैरी कर रहा है, इट मींस व्हाट, दे हैव टैप रूट, while on the another hand side lemon grass have parallel venation as well as the fibrous root, okay. Now these are the types, see, these activities you all are going to complete with your own. Now see, ये जो अभी आपने पढ़ा है, ठीक है, तो इसने आपको क्या बताया कि डिफरेंट प्लांट फीचर्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर, ओके, रियली दिस प्लांट फीचर्स आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द आइडिया ऑफ रीग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सी द आइडिया ऑफ रीग्रुपिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो देखिए हाउ टू ग्रुप एनिमल्स। सो एनिमल्स को आप कैसे ग्रुप करोगे, व्हाट आर द बेसिस फॉर देयर ग्रुपिंग, तो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उनका बिहेवियर, उनका हैबिटेट, ठीक है। आप लोगों ने अभी देखा है कि एनिमल्स की मूवमेंट कैसी होती है। मूवमेंट के अलावा नाउ वी आर गोइंग टू सी सम अदर फीचर्स ऑफ एनिमल्स आल्सो, ओके। सो यू कैन सी डाइवर्सिटी इन एनिमल्स, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स आपको दिख रहे हैं, तो क्या आप बता सकते हो कि ये जो एनिमल्स हैं अपने किस बॉडी पार्ट का यूज करते हैं,
ठीक है, किस बॉडी पार्ट का यूज करते हैं। तो इस पिक्चर पे बेस्ड ना, आपका इस पिक्चर पे पूरा बेस्ड आप देखोगे मूवमेंट इन एनिमल्स एंड देयर बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व। ठीक है, एनिमल्स के बीच में जो ये मूवमेंट होता है, तो ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे नेम ऑफ द एनिमल, तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आंट। तो आंट का मूवमेंट क्या होता है, दे कैन वॉक। ठीक है, ये वॉक करते हैं, ये कैसे वॉक करते हैं, ये अपने लेग्स की वजह से, ये मतलब हाँ, इनके पास 6 लेग्स होते हैं। ठीक है, ये उसी की हेल्प से ये मूव करते हैं। देन गोट, गोट क्या कर सकते हैं, दे कैन वॉक एंड दे कैन जंप। ओके, अब वॉक एंड जंप ये दोनों कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ लेग्स। ओके, नाउ पिजन, पिजन क्या कर सकते हैं, दे कैन वॉक एंड फ्लाई बिकॉज पिजन आर बर्ड्स। ओके, तो आप देख सकते हो इन ये कौन से बॉडी पार्ट का यूज करते हैं, ये अपने लेग्स और विंग्स का यूज करते हैं। एंड हाउस फ्लाई, यस हाउस फ्लाई कैन वॉक एंड एज वेल एज फ्लाई। ठीक है, तो ये अपने लेग्स और विंग्स का यूज करते हैं। फिश, okay, fish can swim with the help of their fins. Apart from them, आप कोई भी एनिमल को ले सकते हो एज एन एग्जाम्पल एंड यू कैन सी देयर मूवमेंट। और अगर मूवमेंट करना है तो आपको ये भी याद रखना है कि वो अपने कौन से बॉडी पार्ट का यूज करते हैं। ठीक है, ओके, अब आपने ये सारा देख लिया है कि जो एनिमल्स हैं उनका मूवमेंट कैसे होता है। तो अब आपने ये देखा है कि कुछ एनिमल्स फ्लाई कर सकते हैं, कुछ रन करते हैं, कुछ क्रॉल करते हैं, कुछ वॉक हॉप और जंप करते हैं। ठीक है, तो इन सारे मूवमेंट्स को करने के लिए, इन सारे मूवमेंट्स को करने के लिए दे यूज देयर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, लाइक दे आर यूजिंग देयर विंग्स, लेग्स और अदर स्पेशलाइज्ड पार्ट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, आप इन एनिमल्स के मूवमेंट के बेसिस पे आप इनकी कैटेगराइजेशन कर सकते हो। ठीक है, इनका बॉडी शेप अलग होता है, साइज अलग होता है, कलर अलग होता है, स्ट्रक्चर भी अलग होता है। नाउ नो द साइंटिस्ट। स्टूडेंट्स, दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक साइंटिस्ट है, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जानकी अम्मल। ठीक है, तो जानकी अम्मल इंडिया के एक बोटैनिस्ट थी। ठीक है, जिन्होंने अपनी पूरी लाइफ एनवायरमेंट को डेडिकेट किया था। ठीक है, और इन्होंने क्या किया था, इंडिया की जो रिच प्लांट बायोडाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करने में इन्होंने काफी ज्यादा अपना कॉन्ट्रीब्यूशन किया है। ठीक है, इन्होंने सेफ साइलेंट वैली जो मूवमेंट था उसमें काफी की रोल भी प्ले किया है। ठीक है, और ये इंडिया का जो बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसकी हेड भी ये रह चुकी हैं। ठीक है, नाउ सक्सेस स्टोरी। ये जो सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट है ये था क्या, देखो ये एक्चुअली हमारा जो केरला डिस्ट्रिक्ट है, केरला डिस्ट्रिक्ट का पलक्कड़, सॉरी केरला स्टेट का एक डिस्ट्रिक्ट है पलक्कड़। ठीक है, ये पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट की ये रियल स्टोरी है। ठीक है, यहाँ पे आप सभी जानते हो केरला इज रियली वेरी ब्यूटीफुल स्टेट विच इज वर्ल्ड फेमस फॉर इट्स फॉरेस्ट। ठीक है, यहाँ पे किस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मॉइस्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, तो ये जो सेफ साइलेंट वैली था ये बेसिकली केरला के पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के एवरग्रीन फॉरेस्ट और उसके रिच बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए था। ठीक है, तो ये जो फेमस साइलेंट वैली जो मूवमेंट था इसने काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन किया था कॉमन लोगों को साथ में लाने का। ठीक है, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिपको मूवमेंट है। ठीक है, वैसे ही ये जो मूवमेंट था इसमें क्या हुआ कि बहुत सारे कॉमन लोगों ने पार्टिसिपेट किया था फॉर सेविंग द ब्यूटी ऑफ रिच बायोडाइवर्सिटी ऑफ पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि यहाँ पे द बैटल अगेंस्ट द प्रपोजल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम अक्रॉस द कुंथी पूजा रिवर परसिस्टेड फॉर 10 years। ठीक है, ये जो मूवमेंट था वो इसलिए स्टार्ट हुआ था क्योंकि केरला गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम बनाना चाहते थे ये लोग। ठीक है, एक डैम बनाना चाहते थे कुंथी पूजा रिवर के ऊपर, और ये ऑलमोस्ट 10 years तक ये बैटल चला था। ठीक है, वहां पे लोगों ने सारी चीजें यूज किया कि यहाँ पे डैम कंस्ट्रक्ट ना हो, जो फॉरेस्ट का एरिया है वो वही एरिया है। यहाँ पे एडिटर्स को लेटर लिखे गए थे, आर्टिकल्स कई सारे छपवाए गए थे, सेमिनार्स, पिटिशंस एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। तो इस तरीके से सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ और सक्सेसफुल भी हुआ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्लांट्स एंड एनिमल्स इन डिफरेंट सराउंडिंग। अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको कई सारे प्लांट्स और एनिमल्स दिख जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिशेस की। वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फिश। तो फिशेस कहाँ रहते हैं, फिशेस वाटर के अंदर में रहते हैं। ठीक है, और ये वहीं पे बस रह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इनकी बॉडी पूरा एडॉप्टेड होती है उस नेचर के लिए, यानी कि मरीन एनवायरमेंट के लिए। ठीक है, इनकी जो बॉडी होती है वो स्ट्रीमलाइंड होती है। ठीक है, साथ ही साथ वो अपने फंस का यूज करते हैं मूव करने के लिए। ठीक है, वहीं पे गोट्स ऑन द अनदर हैंड साइड, गोट्स क्या करते हैं, ये लैंड पे रहते हैं। ठीक है, ये ग्रास, ये आपके प्लेन एरियाज में या फिर रॉकी एरियाज में भी रहते हैं, जिनको आप माउंटेन गोट्स कहते हो। ठीक है, इनके जो लेग होते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होते हैं, अपने इन्हीं लेग्स की हेल्प से वो कहीं पे भी मूव कर सकते हैं, कहीं पे भी क्लाइंब कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये एक टेबल है, इस टेबल को आप लोगों को कंप्लीट करना है। जैसे कि
कैमल, कैमल कहाँ पे पाए जाते हैं? वेयर वी कैन सी कैमल, डेजर्ट एरिया, ठीक है। ये कहाँ पे मिलते हैं? ये डेजर्ट में मिलते हैं, ठीक है। और माउंटेन में अगर आप देखेंगे तो ये देखो, ऑन माउंटेन्स देवदार ट्री, ओके। देखो इन डेजर्ट, डेजर्ट में आपको क्या मिलता है? कैमल एनिमल मिलता है। आपको एनिमल और प्लांट दोनों के बारे में बताना है। माउंटेन में कौन सा ट्री आपको बेसिकली मिलेगा? देवदार का ट्री। ओशन की अगर आप बात करोगे तो व्हाट टाइप ऑफ एनिमल वी आर गोइंग टू सी? फिशेस, ठीक है। फर्स्ट की अगर बात करोगे तो लायन मिलेंगे। तो इसी तरीके से अब आप लोगों को ये बताना है कि इन डेजर्ट एरिया अपार्ट फ्रॉम कैमल विच अदर एनिमल वी कैन सी। ओके, माउंटेन में अपार्ट फ्रॉम देवदार कौन कौन से ट्रीज पाए जाते हैं? ओशन में फिशेस के अलावा और भी स्पीशीज हैं, वो कौन है आपको लिखना है। और फॉरेस्ट में अपार्ट फ्रॉम लायन व्हाट टाइप ऑफ एनिमल वी कैन सी? वाइल्ड एनिमल, ठीक है। आप लोग को ये पूरा लिखना है यहाँ पे। जब आप ये पूरा कंप्लीट कर लोगे तो यू आर गोइंग टू सी योर ओन ऑब्जर्वेशन। आपको क्या, आपका खुद का क्या ऑब्जर्वेशन होगा इसमें? आप जो भी ऑब्जर्व करोगे यू आर गोइंग टू डिस्कस योर ऑब्जर्वेशन विद योर ओन क्लासमेट्स, ठीक है। तो छोटा सा कंक्लूजन इसका ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। तो आप देखेंगे कि ये जितने भी एनिमल्स हैं ये सब एक दूसरे से अलग हैं, ठीक है। कोई डेजर्ट में है तो कोई बिल्कुल आपका पानी में है, तो कोई लैंड एरिया पे है, तो कोई माउंटेन्स में है। दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जैसे कि कैमल्स आपके हॉट डेजर्ट राजस्थान में पाए जाते हैं, तो वहीं पे जो लद्दाख का कोल्ड डेजर्ट हमारा है, यस लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट ऑफ आवर कंट्री इंडिया, यहाँ पे भी कैमल्स पाए जाते हैं। लेकिन वो कैमल्स जो लद्दाख में मिलते हैं दे आर डिफरेंट फ्रॉम कैमल्स फाउंड इन आवर राजस्थान स्टेट, ठीक है। और यही जो इनका डिफरेंस है, यही इनको एक्सट्रीम और हार्श क्लाइमेट में रहने में हेल्प करता है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे साइज, शेप, ठीक है। देखो साइज, शेप और मूवमेंट ऑफ एनिमल्स, ये सब के सब उनके रहने के आसपास के एरिया के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। अगर वो माउंटेन एरियाज के कोई एनिमल है तो उनके लेग्स बहुत स्ट्रांग होंगे, ठीक है, क्योंकि माउंटेन एरिया में उन्हें क्लाइंब करना होता है, ओके। रेस्ट ऑफ द बॉडी इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग बट द लेग पोर्शन इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है, क्योंकि उनको उसी एरिया में सर्वाइव करना है। तो इस तरीके से आप देखोगे इनके जितने भी शेप एंड साइज, इनका जो भी बॉडी स्ट्रक्चर, ये पूरा इनके नियर बाय एनवायरमेंट की वजह से होता है। इसके अलावा कैमल्स को बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग एनिमल माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये कई कई दिनों तक बिना पानी पिए भी सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो राजस्थान हो चाहे वो लद्दाख हो, ठीक है। क्योंकि डेजर्ट में बहुत ज्यादा लिमिटेड अमाउंट होता है पानी का, ठीक है। और काफी ज्यादा गर्मी है तो काफी ज्यादा ठंडी भी है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे डेजर्ट में फ्लैशी स्टेम्स दैट कैन स्टोर वाटर टू हेल्प देम सर्वाइव द हीट। वहीं पे अगर आप प्लांट्स की बात करते हो तो यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ के प्लांट्स के जो स्टेम्स होती हैं फ्लैशी होते हैं ताकि वो वाटर को स्टोर कर सके, ठीक है, अपने पास। इसके अलावा इफ यू आर टॉकिंग अबाउट माउंटेन एरियाज, तो माउंटेन एरियाज में आप देखोगे काफी ज्यादा कोल्ड टेम्परेचर होता है, स्नोई माउंटेन्स होते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ के जो बायोडाइवर्सिटी मीन यहाँ के जो प्लांट्स और एनिमल्स है दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द प्लांट एंड एनिमल्स फाउंड इन हॉट एंड डेजर्ट, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। नाउ हॉट डेजर्ट कैमल्स, तो ये देखो यहाँ पे हॉट डेजर्ट कैमल्स की अगर हम बात करें तो हॉट डेजर्ट जो कैमल होते हैं, जो कैमल आपके राजस्थान में पाए जाते हैं, वहां पे ये जो कैमल्स होते हैं इनकी बॉडी पर एक सिंगल हम्प होता है। लेट मी शो यू व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हम्प। ये सी, ये इस टाइप का एक हम्प होता है, ठीक है, इनकी बॉडी के ऊपर, कैमल्स की बॉडी के ऊपर, ठीक है। वो इसी में अपने बॉडी का फैट स्टोर करके रखते हैं, ठीक है, जिसको वो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फूड के फॉर्म में यूज करते हैं जब खाने या पीने की कमी होती है, ठीक है। कैमल्स के काफी लॉन्ग लेग होते हैं, ठीक है, और उनका जो फीट होता है बहुत ज्यादा पैडेड होता है जिसकी वजह से वो हॉट सैंड पर ट्रेवल कर सकते हैं, ठीक है। और लॉन्ग लेग्स के अलावा इसके अलावा क्या क्या इनका और फीचर्स है? दे कैन स्टोर देयर फूड, ओके, जिसकी वजह से वो काफी लंबे टाइम तक सर्वाइव कर सके। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ हॉट डेजर्ट कैमल्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी द फीचर ऑफ कैमल्स फाउंड इन आवर कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो कोल्ड डेजर्ट जो कैमल्स होती हैं इनकी बॉडी पे 2 हम्स होती हैं, ठीक है। इनकी बॉडी में कितने हम्स होंगे? 2 हम्स होंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं? इन्हीं हम्स में वो अपने फूड को स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो कोल्ड डेजर्ट के कैमल्स है लद्दाख एरिया के, इनकी पूरी बॉडी में लॉन्ग थिक हेयर होता है फ्रॉम हेड टू नेक, ठीक है, जिसकी वजह से ये वहां के ठंडी को सर्वाइव कर पाए, ठीक है। और इनके लेग्स छोटे होते हैं, ठीक है, इनके लेग्स क्या होते हैं? छोटे होते हैं, ठीक है। और छोटे क्यों होते हैं? ताकि ये रॉकी और अनइवन टेरेस पे easily survive कर पाए। So this is the basic difference between the camel who used to survive in hot desert and the cold desert. Okay? Now, इसके अलावा अगर आप देखोगे
कैमल्स के और कौन कौन से फीचर्स है ये आप लोग को पता करना है, ठीक है। तो देखिए, दिस अडेप्टेशन शोकेस हाउ कैमल्स आर परफेक्टली इक्विप्ड टू थ्राइव इन एक्सट्रीम एनवायरनमेंट वेदर facing the scorching heat of the whole hot desert or the icy winds of the camel desert। तो आपने अभी जो डिफरेंसेस देखा है, आपको ये दिख गया होगा कि एक बहुत ज्यादा गर्मी के लिए अडॉप्टेड है और एक बहुत ज्यादा ठंडी के लिए अडॉप्टेड है, ठीक है। ओके, सो आगे देखिए क्या होता है। माया, ठीक है, माया नाम की एक बच्ची है, उसने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया है। किस चीज का एक्सपीरियंस? उसने देखा है कि एक बहुत छोटा सा प्लांट है, उसमें उस छोटे से प्लांट में बहुत ही ब्राइट फ्लावर्स आए हैं, ठीक है, और उसके ना बहुत छोटे छोटे से लीव्स हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो विंड में जिसकी वजह से वो माउंटेन एरियाज में सर्वाइव कर पाते हैं। मतलब माया ने एक फ्लावर देखा है, एक प्लांट देखा है जो कि माउंटेन एरियाज में सर्वाइव करते हैं, और माउंटेन में स्ट्रॉन्ग बहुत ज्यादा विंड्स ब्लो करती हैं, ठीक है। वहीं पे दूसरी तरफ पेमा, जो कि सिक्किम से हैं, उन्होंने ये मेंशन किया था कि रोडोडेंड्रम्स, ठीक है, उनके यहाँ पे रोडोडेंड्रम्स पाया जाता है जो कि माउंटेन एरियाज में रहते हैं। लेकिन ये जो रोडोडेंड्रम्स है ये काफी लॉन्ग होते हैं, ठीक है, और जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में सरवाइव करते हैं ये बाकी के फ्लावर्स से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है, बाकी के फ्लावर्स के सर्वाइविंग एनवायरनमेंट से बिल्कुल अलग होता है। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो जो प्लांट आपका रोडोडेंड्रम है, ठीक है, दिस इज द पिक्चर ऑफ रोडोडेंड्रम, ये रोडोडेंड्रम है, ठीक है। तो जो रोडोडेंड्रम के फीचर्स होते हैं वो बाकी के सारे प्लांट्स फीचर्स है वो आपके अलग होते हैं, ठीक है, वो इसीलिए सिक्किम जैसे एरिया में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा सागर, सागर एक थर्ड यहाँ पे बच्चा है जिसका एग्जाम्पल दिया गया है। उसने अंडमान और निकोबार आइलैंड में कभी गया होगा, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ, उसने अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के बारे में बताया है। उसने बताया कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में उसने बहुत ह्यूज वेल्स को देखा था और काफी सारे कलरफुल फिशेस को भी उसने देखा था, ठीक है। ओके, ये जो अभी आपने पढ़ा है, जो प्लांट्स अलग हैं, यहाँ पे एनिमल्स अलग है, ये दिखा क्या रहे हैं? ये इस चैप्टर का जो नाम है ना, डाइवर्सिटी इन प्लांट्स एंड एनिमल, ये वही है। आपने देखा है कि प्लांट्स कहीं माउंटेन का कुछ और है तो आपका कोस्टल एरिया का कुछ और है। वहीं पे अंडमान और निकोबार क्या है, ये कोस्टल एरिया है, ठीक है। तो कोस्टल एरियाज में क्या पाए जाते हैं? आपके फिशेज हैं, वेल्स है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो आपने डाइवर्सिटी देखा, ठीक है। नाउ नो द साइंटिस्ट। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम सलीम अली के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के भी नाम से जाना जाता है। तो इन्होंने क्या किया था, ये इंडिया, पूरे इंडिया में इन्होंने ट्रैवल किया था, और इन्होंने, इनके ट्रैवलिंग का पर्पस क्या था? He wants to know about the diversity of birds present in our country India, ठीक है। इन्होंने बर्ड्स की लिस्ट भी बनाई थी, यहाँ तक कि कई सारी डॉक्यूमेंट्रीज भी इन्होंने प्रिपेयर की थी, ठीक है। और कहाँ पे प्रिपेयर किया था? ये जिस रूट को कवर कर रहे थे अपने ट्रैवलिंग में, ठीक है, वहां पे जो बर्ड्स का हैबिटेट था इसके ऊपर इन्होंने डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, ठीक है। इसके अलावा ये बेसिकली उन एरियाज में ज्यादा गए जहां पे बर्ड्स की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। और उन्होंने ये भी देखा था कि बर्ड्स की हंटिंग भी बहुत ज्यादा होती है, तो उनको कंजर्व करने के लिए, उस पूरे रीजन को प्रिजर्व करने के लिए इन्होंने काफी ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, ठीक है। कैलियोडो नेशनल पार्क जो कि भरतपुर राजस्थान में, रंगनाथिट्टू बर्ड सेंचुरी जो कि मंड्या कर्नाटका में है, ठीक है। ये दो ऐसे बर्ड सेंचुरी के एग्जाम्पल्स है जहां पे बर्ड्स को इन्होंने ही प्रिजर्व किया है, ठीक है। यहां तक कि इन्होंने 10 बुक की एक सीरीज लिखी है। ये जो 10 बुक्स है ना, पूरे एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इन्होंने 10 बुक्स की सीरीज लिखी है जिसमें इन्होंने इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब इंडिया और आसपास के कंट्रीज में पाए जाने वाले बर्ड्स की लिस्ट इन्होंने लिखा है। इसीलिए इनको बर्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इनको पद्म विभूषण दिया गया था 1976 में, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपने जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं, चाहे वो माया हो, चाहे वो सागर का हो, चाहे पेमा का हो, ठीक है, आपने ये जितने भी एग्जाम्पल्स देखे हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको ये बताते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स कैसे अपने सर्वाइविंग अराउंड, अपने सर्वाइविंग एनवायरमेंट में खुद को क्या करते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे, दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव। ओके, सी प्लांट एंड एनिमल्स इन अ पर्टिकुलर रीजन डेवलप स्पेशल फीचर्स कॉल्ड एडेप्टेशंस, ठीक है। तो वो जो एक पर्टिकुलर हैबिट डेवलप करते हैं उसी को एडेप्टेशन कहा जाता है, ठीक है। और इसी एडेप्टिव नेचर की वजह से वो स्पेसिफिक रीजन्स में क्या करते हैं, सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए, द हैबिटेट इज द प्लेस। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट? तो हैबिटेट क्या है? देखिए, हैबिटेट इज द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव। तो हैबिटेट क्या है? हैबिटेट वो एरिया है जहां पे ये प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं।
तो यहाँ पे वो सारी चीजें पाई जाती हैं जो इनके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सी टर्टल्स, ठीक है, सी टर्टल्स आपके सी और ओशन में रह सकते हैं। इसके अलावा कैमल, दोनों डेजर्ट में रह सकते हैं, चाहे वो हॉट हो या कोल्ड हो, चाहे एंड देन रोडोडेंड्रम्स, दीज आर द प्लांट स्पीशीज, या आपके सिक्किम के माउंटेन्स में सर्वाइव कर सकते हैं। नाउ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल हैबिटेट? लैंड एनिमल्स, ठीक है, लैंड एनिमल्स एंड प्लांट्स, ओके। So the animals and plants who can survive on land area, they are called as their terrestrial habitats. Example, forest, desert, grassland, mountains. Aquatic habitat, okay, aquatic habitat क्या है? वो plant और animal जो आपके पानी में रह सकते हैं, ठीक है। Examples, कहाँ ये रहते हैं? आपके pond, lakes, rivers और oceans में। Now amphibians, what is the meaning of amphibians? Let's see. Some animals like frogs can live both in water and on land. कुछ animals ऐसे होते हैं जो वाटर और लैंड दोनों पे रह सकते हैं, तो ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं। नाउ इम्पैक्ट ऑफ हैबिटेट डैमेज, देखो अगर किसी भी प्लांट या एनिमल, अगर कोई भी प्लांट या एनिमल की स्पीशीज डैमेज होते हैं, ठीक है, तो कोई भी फैक्टर हो सकता है, तो उससे उनका हैबिटेट भी डैमेज हो जाता है, ठीक है, और इसकी वजह से उनको फूड, शेल्टर और दूसरे रिसोर्सेस खोजने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जैसे जो गोट है, गोट को अगर खाने के लिए ग्रास नहीं मिलेगा तो उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगा सर्वाइव करने में। इसके अलावा फिश पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, पानी के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों सर्वाइव नहीं कर सकते? क्योंकि उनकी बॉडी ने पूरा का पूरा एक्वेटिक कल्चर को अडॉप्ट किया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए एक चीज लिखा हुआ है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट आवर टाइगर्स। तो अगर आप देखेंगे तो बंगाल टाइगर, चीता और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे ये अपने नेचुरल हैबिटेट को खोते जा रहे हैं। क्यों खोते जा रहे हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ ह्यूमन बींग्स, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कई सारे प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं इनकी बायोडायवर्सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें प्रोजेक्ट टाइगर जो कि 1973 में लॉन्च किया गया था फॉर कंजर्विंग द पॉपुलेशन ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है। इसके अलावा द चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट जो कि 2022 में आया था, जिसमें चीता को लाया गया था, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखोगे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, इनको भी काफी ज्यादा डिक्लेयर किया गया है एंडेंजर्ड स्पीशीज में। इनको उनके प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि आपके राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र में है, वहां पे इनको प्रोटेक्टेड एरियाज में इनको रखा गया है, ठीक है। नाउ हियर क्वेश्चन कम्स लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी। अब ये लॉस ऑफ बायोडायवर्सिटी क्या है? अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ना आप अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स या अपने नेबर से आप बात कीजिए, ठीक है। क्या बात करोगे? आप उनसे बात करोगे प्लांट, बर्ड्स और इंसेक्ट्स के बारे में, ठीक है। आप उनसे पूछोगे जब वो अपने चाइल्डहुड डेज में थे तो कौन कौन से बर्ड्स को, एनिमल की स्पीशीज को उन्होंने देखा था। तो जब आप उनसे बात करोगे यू आर गोइंग टू सी द चेंज। बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो अब आपको देखने को नहीं मिलते हैं, एंड व्हाई वी आर नॉट एबल टू सी देम? जस्ट बिकॉज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, पोल्यूशन एंड क्लाइमेटिक चेंज, ओके। तो उनका जब हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये प्लांट और एनिमल्स भी क्या करते हैं, धीरे धीरे खुद के पॉपुलेशन को खोते चले जाते हैं। तो इस तरीके से हमारी पूरी बायोडायवर्सिटी क्या हो रही है, खत्म होती जा रही है, ठीक है ना। ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सैक्रेड ग्रोव्स, ठीक है, ट्रेडिशनली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सैक्रेड ग्रोव्स। तो स्टूडेंट्स ये सैक्रेड ग्रोव्स आपके क्या होते हैं? देखो, तो जो सैक्रेड ग्रोव्स हैं ये फॉरेस्ट के ना बिल्कुल कह सकते हो, इसको अभी तक किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया, दीज आर द अनडिस्टर्ब्ड, ठीक है। ये किसी एरियाज में छोटे हैं तो किसी एरियाज में बहुत ज्यादा है, जैसे कि जहां पे बहुत ज्यादा है अमेजोन बेसिन, बेस्ट एग्जांपल है अमेजोन फॉरेस्ट, उसको अभी तक ह्यूमंस ने टच नहीं किया है। तो वो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट सैक्रेड ग्रोव्स इन दिस एंटायर वर्ल्ड, ठीक है। हमारा इंडिया बहुत ज्यादा फॉरेस्ट लैंड में आगे था, लेकिन आज के टाइम पे ये 23% के अराउंड रह चुका है, ठीक है। ये जो सैक्रेड ग्रोव्स होते हैं, यहाँ पे अलग अलग टाइप के प्लांट और एनिमल्स पाए जाते हैं, जिसमें आपके मेडिसिनल प्लांट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और इनका जो प्रोटेक्शन होता है, वैसे ये प्रोटेक्टेड क्यों है अभी तक? क्योंकि जो लोकल कम्युनिटी है, ये जो लोकल कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, जो ट्राइबल कम्युनिटी यहाँ पे रहती है, वो इनको प्रोटेक्ट करती है और ये बाहर के लोगों को आना बिल्कुल भी अलाउ नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ सिनॉप्सिस, लेट्स सी सिनॉप्सिस। तो स्टूडेंट्स इस पूरे चैप्टर में आप लोगों ने देखा है कि हमारे आसपास बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स है जो हमारी प्लैनेट के बायोडायवर्सिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। और क्या हमने पढ़ा है? हमने ग्रुपिंग ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स पढ़ा है। नाउ व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर देयर ग्रुपिंग? तो हमने उनको ग्रुपिंग किया है उनके रूट सिस्टम, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और सीड्स के बेसिस पे, जैसे कि हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज है, ठीक है। सीड स्ट्रक्चर पे अगर आप देखोगे तो मोनोकॉटलीडॉन यानी कि मोनोकॉट्स और डिकॉटलीडॉन्स डिकॉट्स हैं, ठीक है।
मोनोकॉट्स का मतलब क्या होता है? देयर रूट सिस्टम इज फाइब्रस एंड देयर लीव्स इज डिस्प्लेड पैरेलल वेनेशन, ठीक है। डिकॉट्स क्या होते हैं? ये यहाँ पे टैप रूट्स को ये शो करते हैं। इसके अलावा हमने एनिमल्स की ग्रुपिंग क्राइटेरिया भी देखा है, हमने इनके मूवमेंट की बेसिस पे देखा है। कुछ एनिमल्स फ्लाई करते हैं, स्विम करते हैं, वॉक करते हैं, ठीक है। फिर हैबिटेट एंड एडाप्टेशंस, नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैबिटेट? द हैबिटेट इज द प्लेस वेयर प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव, ठीक है। चलो, इसके अलावा हमने देखा है कि बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, उनके बहुत से स्पेशल फीचर्स होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर ट्रेन देयर बॉडी अकॉर्डिंग टू देयर एनवायरमेंट, ठीक है। एक्वेटिक का अगर आप देखोगे, एक्वेटिक प्लांट्स का देखोगे तो इनकी स्टेम्स बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होती हैं। जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं इनके ना फ्लेक्सिबल स्टेम्स होते हैं। और कैमल, चाहे वो हॉट डेजर्ट में हो चाहे आपके कोल्ड डेजर्ट में हो, ये इनकी बॉडी वैसे कंस्ट्रक्टेड है कि ये वहां पे सर्वाइव कर सकते हैं। टेरेस्ट्रियल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेरेस्ट्रियल? प्लांट एंड एनिमल लिविंग ऑन लैंड, ठीक है। एक्वेटिक, जो पानी में रहते हैं। वेरिएशन इन बायोडाइवर्सिटी, yes, biodiversity is really varied from one region to another region. Why? Because there are so many different types of climatic conditions like climate, soil and availability of water. Then comes threat to biodiversity. आपने लास्ट में टॉपिक पढ़ा है ना, threat, loss of biodiversity. तो ये क्या है? ये है threats of biodiversity. ये जो हमारा इतना ब्यूटीफुल बायोडाइवर्सिटी है, इसको काफी सारे थ्रेट्स मिल रहे हैं एंड द मेन रीजन इज अस ह्यूमन बींग्स, हमारी वजह से हो रहा है सब, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? हम डिफॉरेस्टेशन, अर्बनाइजेशन, पॉल्यूशन, ये जो तीन है आउट ऑफ फोर रीजन्स व्हाई आवर बायोडाइवर्सिटी इज कंटिन्यूअसली फेसिंग थ्रेट, 3 रीजन टोटली बिलोंग्स टू ह्यूमन बींग्स। क्लाइमेट चेंज भी कहीं ना कहीं हमारी ही वजह से है इसमें भी, ठीक है। इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी खत्म होती जा रही है, ठीक है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, हमें हमारी बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। और ये प्रोटेक्ट हमें क्यों करना है? ताकि हमारा इकोसिस्टम इजीली मेंटेन रहे, ओके। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर, ओके। दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इनटू योर 2 parts because it's a bit longer chapter, okay। So read this chapter very well and complete all your exercises, okay। Now students, I'm taking leave. I'm going to meet with you all in my next class with a new chapter. Till then, you all are going to take very good care of yourself. Bye.